हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट सो दैट other people can benefit from it. And let's go with our today's topic, that is your microeconomics and macroeconomics. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाते हैं। The concept of macroeconomics and macroeconomics, actually it was given by a Norwegian economist जिनका नाम था Ragnar Frisch, and he is first Nobel Prize winner in economics. And earlier there was no the term like microeconomics and macroeconomics. It was initially the microdynamics and macrodynamics. All right, and he gave this term in 1933, and eventually over a period of time ये दो terms धीरे धीरे they became actually the microeconomics and macroeconomics. All right, so they standardized it over a period of time. All right, so you have to remember it was first the Ragnar Frisch who gave the concept of microdynamics and macrodynamics. All right, now what is microeconomics? Microeconomics क्या चीज है? Before I go into it, let me kind of give you a bit of overview कि how does an economy work? एक इकोनॉमी कैसे डिजाइन होती है, एक इकोनॉमी कैसे काम करता है. Okay, give me a minute. Now see, in any economy, I told you in my last lecture there are certain you can say it certain decision makers. Certain decision makers होते हैं इकोनॉमी में. Okay, now say for example इकोनॉमिक एजेंट्स भी इनको बोलते हैं. Economic agents. First is individual. Okay. Second is your, individuals. In some books, you also find the name households. Second, we have the government. And third, we have the firms. All right. Yeah. Second is the firm. Third is the government. So they are all the economic decision makers. Their working actually depends, or their working will impact on the whole economy. If you talk about any particular individual or household or a firm, अगर हम एक फर्म की स्टडी करते हैं या एक इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी हमें क्या करना है कि हाउ इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड. ये इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लेते हैं, चाहे एक इंडिविजुअल है या एक फर्म है, हाउ दे टेक एनी इकोनॉमिक डिसीजन. ये इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेते हैं. नाउ व्हाट इज दिस वर्ड इकोनॉमिक डिसीजन? इकोनॉमिक डिसीजन मींस एनीथिंग which involves money, or there is some exchange of goods and services. There is some exchange of goods and services. If you study the individual, for example you want to buy a phone, and if you study, अगर आप इस पे for example hypothetically PhD करते हैं, या एक firm या कोई भी organization कैसे डिसीजन लेती है, कोई भी डिसीजन which involves money, you have to remember economic decisions and non-economic decisions. So non-economic decisions are those decisions which does not involve money, or there is no quick exchange of goods and services. All right, if you study, see what is now microeconomics. Microeconomics is simply, if you study, see, it deals with the study of behavior of individual economic
agents or the units such as household or a firm. If you study an individual here means single. If you study about a single economic agent, I told you there are three big economic agents. One is your individual or household, another is your firm, and third is government. अगर आप इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, एक फर्म कैसे डिसीजन लेती है और एक इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड रिमेंबर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं कितने होते हैं, दो ही तो हैं, एक इंडिविजुअल एंड फर्म. किसी किसी बुक में गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हम बताएंगे क्यों. एनीवे ये जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कौन कौन है, इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, they only try to fulfill their own personal welfare. इनका मकसद क्या होता है कि अपना वेलफेयर देख लेना. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, ठीक है, इफ इट वांट्स टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट, अपना खर्चा कम करना चाहती है, सो दैट प्रॉफिट्स बढ़ जाए. अगर आपको कॉस्ट्स कम करने हैं तो प्रॉफिट्स बढ़ जाए, ठीक है. और ये कैसे अगर ये काम करती है, कोई भी फर्म अपने खर्चे कम करना चाहती है, इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. if you want to a person wants to save maximum money, how do you save that money, आप कौन कौन से खर्चे कम करते हो, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. यस, गिव मी अ मिनट. So what is microeconomics? It is simply where you study you study what behavior. You study the behavior of individual decision maker. Here it includes two. One is the individual or household or firms. तो क्या करते हैं आप इनके, स्टडी क्या करते हैं, बिहेवियर अबाउट देयर इकोनॉमिक डिसीजंस. ये खर्चे कैसे करते हैं, कोई भी डिसीजन which involves money is known as your economic decision. Say for example आपको कार ए लेनी है या कार बी लेनी है, आप कौन सी कार लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो, व्हाट आर द बजट कंस्ट्रेंट्स, जितनी भी चीजें हैं इस एस्पेक्ट में अगर आप इसकी स्टडी करते हैं, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स में, द वर्ड फर्म जो है, फर्म, इट स्टैंड्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी डिसीजन लेती है एंड इफ यू स्टडी दैट डिसीजन, इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. से फॉर एग्जांपल सैमसंग ने, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आपने एक फॉर एग्जांपल सीरीज ए वाले फोन में प्राइसेस कम किए, क्या किए, कम प्राइसेस. नाउ इफ यू स्टडी दिस स्ट्रेटजी ऑफ दियर्स, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, ओके. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको याद रखना लेना है कि इट एनालाइजेस द इकोनॉमिक डिसीजंस. इसमें हम एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस को एनालाइज करते हैं, विच आर टेकन एट माइक्रो लेवल, छोटे से लेवल पे. सो हियर वर्ड अगेन माइक्रो मीन्स बाय अ पर्सन, either by a person or by a particular firm. You want to buy a phone, you want to choose a supplier. If you study these decisions, this is the microeconomics. It studies the demand and supply concepts. Remember, अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई. सो डिमांड एंड सप्लाई concept, it is a part of microeconomics, and this theory, remember, is also known as price theory. Okay, all right. Now what is macroeconomics? So macro, by its meaning, means large. It means bigger aspect or the larger aspect, large. So here we try to understand economy as whole. So पूरी economy की अगर हम study करते हैं, if we study the aggregate behavior means the total behavior of the entire economy. Entire economy means all the persons,
right, comma, all the firms and the government, अगर सब ऑल दीज थ्री एजेंट्स को मिला के जितने भी लोग हैं इनकी स्टडी करते हैं, फर्म्स जितने भी हैं इनकी स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो these economic decisions जो कहाँ पे लिए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, right, they have an impact on the whole economy. So micro does not actually directly impact the whole economy. Micro छोटा वाला, आप फोन ए लेते हैं या फोन बी लेते हैं, इससे इकोनॉमी पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. बट हाँ, अगर हम ये देखते हैं, से फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखते हैं, गिव मी अ मिनट. If you save money, say for example, if you save money, it is the part of what, if you can tell me in the microeconomics, it is a part of micro saving. अगर आपकी इनकम है, remember, if you save 200 rupees per month, this is an economic decision and it becomes a part of microeconomics. It is a part of microeconomics. यहाँ तक समझ आए, ये भी इकोनॉमिक डिसीजन है ना. ओके, बट अगर हम देखेंगे सेविंग ऑफ ऑल द पीपल इन इंडिया, सारे लोग इंडिया में सेव करते हैं, एंड इफ यू स्टडी दैट बिहेवियर, दैट इज नोन एज एग्रीगेट बिहेवियर, दैट इज नोन एज एग्रीगेट बिहेवियर, सबका बिहेवियर है कि सब लोग इंडिया में सेविंग कैसे करते हैं. इट बिकम्स द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. कैसे, देखिए, अगर इंडिया में, रिमेंबर, सेविंग्स बढ़ जाती हैं, सेविंग्स रेट इंडिया में, अब मैं वर्ड करूं इस्तेमाल इंडिया में, इफ द सेविंग्स रेट इंक्रीज in India, all the people try to save, they go for less expenditure, what will happen, it will increase the availability of money in the economy. सारा पैसा किनके पास रहेगा, बैंक्स के पास. और जब बैंक्स के पास पैसा होगा, सेविंग्स लोगों की, सो मुझे बताइए इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे. ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो जाएंगे. इमेजिन, बैंक्स हैव ऑल द मनी, मैक्सिमम मनी इज विद द बैंक्स, लोगों का. अब अगर ये बैंक्स लोन्स भी देना चाहेंगे, लोन्स, तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होंगे. आपको समझ आ रहा है, एंड इट विल बूस्ट द इकोनॉमी. ये क्यों, बिकॉज इंडिया में सेविंग रेट बहुत ज्यादा है. सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जब 2007 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था पूरी दुनिया में, सो इंडिया जो है, इंडिया में इसका इम्पैक्ट कम ही देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में सेविंग्स बहुत थे, बैंक्स के पास बहुत पैसा था, और इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा नहीं फेस करना पड़ा हमें, फाइनेंशियल क्रंच. लेकिन अभी हम कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि इंडिया में सेविंग्स रेट जो है घट रही है. सो कैन वी से कि पीपल डू नॉट ट्रस्ट द बैंकिंग सिस्टम दीज डेज. एनीवे, सो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, ये देखिए, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर इज अ वन, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है. दे डू नॉट फॉलो द सेल्फ इंटरेस्ट. सो इनका मकसद क्या है, पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट. एग्जांपल, आरबीआई, सेबी, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है, इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द होल इकोनॉमी, एंड दे यूज द रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल इकोनॉमी. जो माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर है, इफ यू रिमेंबर, दे वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, दे वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट. एंड मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, दे वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, ऑल राइट. नाउ इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, look here, the word is aggregate demand and supply. See, look here, the word is aggregate demand, aggregate demand and aggregate supply. Aggregate means total demand and total supply. वहां पे क्या था, individual demand. माइक्रो इकोनॉमिक्स में, what is the level of output,
अगर हमें जीडीपी के बारे में पढ़ना है, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. If we study aggregate demand and aggregate supply, it is a part of macroeconomics. So remember the word macroeconomics. Unemployment issues, it is a part of macroeconomics. Inflation, prices का चेंज होना, जनरली ऊपर चले जाना, इट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. समझ आया? ओके, चलिए. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इसका दूसरा नाम याद रखेंगे आप. ओके, ऑल राइट. चलिए, सी 1928-29 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था दुनिया भर में. तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स. तो ये भाई साहब ने एक बुक लिखी थी, बुक जो यहाँ पे है, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. And in this book only, he gave the concept of macroeconomics. He gave the concept of macroeconomics. यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. See, I want to add here one more point. Around 1929-30s, वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरी वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था. सिवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन. ठीक. इससे पहले देयर वाज नो concept ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomics. Remember it. There is nothing called micro and macro. और concept था that कोई भी इकोनॉमी जो है ये सेल्फ रेगुलेट होती है. सेल्फ रेगुलेट, इसका मतलब ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट था कि अगर इकोनॉमी ऐसे ऊपर नीचे जा रही है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है. इकोनॉमी यहाँ पे है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ तक खुद आ जाएगी, और जब यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगी. दिस वाज अ कॉन्सेप्ट. जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, तो एक बंदा था जिसका नाम था जे एम कीन्स, जॉन मेनर्ड कीन्स. इसने अपनी ही बुक में लिखा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी खुद ही एडजस्ट करेगी. सो वी नीड टू हैव अ सेपरेट काइंड ऑफ स्टडी ऑन द मैक्रो एस्पेक्ट. मैक्रो एस्पेक्ट, मैक्रो एस्पेक्ट को हमें ध्यान से पढ़ना होगा. मैक्रो एस्पेक्ट मींस दोज एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी व्हिच हैव द इम्पैक्ट ऑन होल कंट्री. ऐसे आप समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है. एम्प्लॉयमेंट, आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. इन्फ्लेशन, प्राइसेस, ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल्स, ठीक है, पॉवर्टी. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स which actually emerge. ये तब तक आए नहीं थे जब तक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था. तो 1929 के बाद ही ये concepts आए, and over a period of time after 1929 and after he wrote this book, this general theory of employment and interest, उसके बाद ही concept of macroeconomics आ गया. तब तक ऐसा कुछ micro and macro नहीं था. Alright. चलिए क्विकली आप चलते हैं. एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज मीजो इकोनॉमिक्स. सो सिंपली मीजो मींस इन द मिडल, राइट. सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो ना माइक्रो है और जो ना मैक्रो है. इट फोकसेस ऑन द इंटरमीडिएट लेवल. ये देख लीजिए, इट इज ऑन द इंटरमीडिएट लेवल बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. से फॉर एग्जांपल, इट स्टडीज अ पर्टिकुलर सेक्टर. इट स्टडीज अ पर्टिकुलर सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक ये एजुकेशन सेक्टर हो गया. अगर आप किसी खास पर्टिकुलर सेक्टर या किसी खास पर्टिकुलर रीजन को फोकस करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ मीजो इकोनॉमिक्स. देखिए, अगर आप पूरी इंडिया की बात करते हैं, इफ यू स्टडी द होल इकोनॉमी, इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स.
बट से फॉर एग्जांपल वी वांट टू स्टडी द इकोनॉमी ऑफ बंगाल ओनली, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं, इट इज मीजो इकोनॉमिक्स, राइट? If you study the whole all the sectors in India, telecom, say for example, education sector, finance sector, all these sectors, that is a part of macroeconomics. But if we study a particular sector, a single sector, say for agriculture की study करते हैं, it is the part of mesoeconomics. Okay, remember it. Now there is something called एक नया branch है, it's called meta economics. meta economics, so meta का मतलब होता है beyond, ठीक है, और ट्रांसेंडेंट, फॉर एग्जांपल मेटाफिजिक्स, जो फिजिक्स से बाहर चीजें हैं। सो मेटा इकोनॉमिक्स जो है, इट स्टडीज द फिलोसफिकल एंड ethical foundation of economics. Two things, remember, philosophical and ethical aspect of economics. क्या it simply, ऐसा समझ लीजिए, simply, give me a minute, yes, now understand here. All right, अगर हम कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमें एक रोड बनाना है, alright, from place A to place B. Okay, this is an economic decision. This is an economic decision. It involves a lot of resources. It involves money. आपको ये खर्च करना पड़ेगा and all that. But this road has to be, cut through a jungle. एक जंगल के थ्रू हमें जाना है, इस रोड को बनाना है, right? Okay. But if we study its impact on the environment, remember the word, if we study its impact on environment, रोड तो बनेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्या डज इट इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, डज इट लीड टू डिफॉरेस्टेशन? This question, that does economic activities have impact on the society, it is known as your meta economics. It is known as meta economics. ऑल राइट, से फॉर एक स्ट्रैटेजी है, जब भी कोई न्यू कंट्री डेवलप होती है, इट हैज टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड बिग फैक्ट्री, big dam, that which a country should focus on big factories and big dams, so that आपका agriculture भी बढ़ जाए. Now if you want to create a big dam, आपको एक dam create करना है, for that आपको सिर्फ 10,000 people को उस जगह से हटाना पड़ेगा, ठीक है? Is it okay? Okay, the dam, construction of the dam is okay, we will have the irrigation, we will have the power supply, power generation and everything, but don't you think that it is going against the people who are living in these areas for hundreds and hundreds of years, and then you go for their relocation, इनकी जमीन ले जाते हो आप, ओके, कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए फिर इनके लिए कुछ ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है. सो इफ यू स्टडी दीज फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, this is known as your meta economics. This becomes very important for your GS4. Do you remember GS4? Ethics, integrity and aptitude, ethics portion. Okay, example, what is the example of meta economics now? शुड प्रॉफिट बी द ओनली गोल ऑफ ए फर्म? क्या किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी का एक ही मकसद है, क्या प्रॉफिट? क्या सोसाइटी का कोई मकसद नहीं है, सोसाइटी के लिए कुछ ना करें वो? ओके, व्हाई ऑफन इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट लीड टू डेवलपमेंट? सी, रिमेंबर वन थिंग, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, दैट मीन्स तीसरे नंबर पे इंडिया का जीडीपी है, बट व्हाई इज इट सो दैट वी हैव स्टिल लॉट ऑफ पॉवर्टी? Still, a lot of women do not enter into the workforce. Lot of unemployment is there. Lot of social issues are still there. Why? So if you study this concept, that despite having the high GDP, why countries like India do not have the that level of development? That is the part of your meta economics. ओके, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको कुछ और कोई भी टॉपिक की जो आपको पढ़ना है, या कोई आपको लगता है कि इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी अ लॉट गुड content coming on this channel. So thank you so much, subscribe the channel and enjoy and study. Thank you so much.